Assalamu alaikum students of class 9th. How are you? This is Ms. Shahnaz, your chemistry teacher, and today we are going to start chapter number 1. As all of you know that we have started chapter number 1 in the physical classes, and many of the topics we have covered in that classes. But today I'm going to explain once, and I'm going to give the more assignment related to the chapter. Okay. Okay students, this is your first assignment. As you know that we are going to study chemistry, and chemistry is the branch of science, so we must know about the science first of all. So as you have seen on the board, I am starting from the science. What is science? Many of the questions are written on board that is regarding the topic. First we must know about the science. कि science होती क्या है? Science comes from the Latin word that is scientia, which means knowledge, right? So in this way, science giving us the complete information about different fields like chemistry, physics, biology, different technology. So science is most related to the technology, actually the word. So we know that साइंस हमें किस तरीक़े से हेल्प देती है हर चीज़ को समझने के लिए, और हम इसे किस तरीक़े से डिफ़ाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पर आपको इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले साइंस की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि साइंस हमें किस किस्म की नॉलेज प्रोवाइड कर रही है. सो फर्स्ट वी नो दैट साइंस है क्या. एज वी नो दैट वर्ड साइंस, I told you before that this word comes from the Latin word which is scientia, right? So scientia means knowledge. This knowledge is based upon what? This is based upon the observation, hypothesis and experiments of universal science. In this universal sciences, the most importantly, chemistry purely deals with the matter which have mass and occupy space. Even from the table salt we use in cooking to electrochemical interaction of our human brain show the differences of substances because of the composition, structure, properties and interaction of matter. The matter is understanding changes continuously in nature, as rusting of iron, evaporation of spirit and burning of coal are examples of the reaction in which we know that the new substances are formed and energy is absorbed or released sometime. All of these things are different due to the presence of different substances which are different by means of composition, properties, interaction and structure of matter. The chemists use chemistry to explain occurrence and description of things. They investigate material and their interactions and propose theories to illuminate our understanding from a practice or the particle to galaxies. So science gives us the complete information about the nature actually. Now comes towards the next question, which is what is chemistry? Chemistry, as we know that this is the one of the branch of science which deals with the complete study of matter. So we can define as this is the study of matter, right? So I told you that what is matter? Matter is the substance or the particle which has mass and occupies some spaces. So what we study about the matter in the field of chemistry, actually the complete description, like what is the composition, like how the matter is composed of, composition, right, of matter, then properties of matter and the chemical changes involved in it. So about the complete information or the knowledge of matter deals with the study of chemistry, right? Then we come towards the next question, what are the branches of chemistry? So for this we have to open the book, and from there we will start explaining the branches of chemistry. Yes students, see the branches of chemistry. Chemistry different fields के अंदर divided है और हर field अपनी एक complete information के साथ मौजूद है.
यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं डिफरेंट फील्ड्स केमिस्ट्री की, जिसमें हम डिफरेंट नॉलेज गेन करते हैं और उसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि हर फील्ड की एप्लीकेशन हमारी लाइफ के अंदर डिफरेंट होती है। सी दैट कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनकी एप्लीकेशंस डिफरेंट है। नंबर 1 आप देख रहे हो फिजिकल केमिस्ट्री, नेक्स्ट वन इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, nuclear chemistry, environmental chemistry, and then the last one is the polymeric chemistry. No students, this is not the last one. There are many more other branches of the chemistry, but in our syllabus we have only these branches which we have to study thoroughly. So first we see that what is the physical chemistry, or which kind of the information or study deals about by the physical chemistry. So physical chemistry हमें किस किस्म की information देती है. So let's see, move towards the book and we have to study from the book what information we are getting from this field. So come on page number 5, open your book. Here are different branches of chemistry. You are looking at the book. So the first one is physical chemistry, which is giving us the knowledge about the different laws and principles governing the combination of atoms and molecules in chemical reaction. मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जब कोई भी मैटर आपस में कंबाइन होता है और कोई न्यू मैटर फॉर्म करता है, तो उसके लिए कुछ थ्योरीज़ इन्वॉल्व होती हैं, कुछ लॉज इन्वॉल्व होते हैं। उन लॉज एंड थ्योरीज़ की स्टडी हमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री की ब्रांच देती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इन द बुक यू कैन सी दैट कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कार्बन कंपाउंड्स एंड द एक्सेप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स. Actually, it is the chemistry of hydrocarbons and their derivatives. Most of the consumers' products are organic in nature. So you can see that the organic is the word which is come from the living origin. कहाँ से वर्ड ड्राइव हो रहा है? ये वर्ड ड्राइव हो रहा है किसी भी लिविंग ऑरिजिन के साथ। जब भी हम पढ़ते हैं वर्ड ऑर्गेनिक, तो ये हमें एक लिविंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन से जो भी कंपाउंड, जो भी मटेरियल या सब्सटेंसेस हमें ऑब्टेन्ड होते हैं, सो दैट आर स्टडीड इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक chemistry. Is that clear? So mostly they are the compounds of carbon and hydrogen, so which are called hydrocarbon. What they are called? They are called hydrocarbons, right? So hydrocarbons की स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मोस्टली हम उन कंज्यूमर्स को या उन मटेरियल्स को हम स्टडी करते हैं जिनका ओरिजिन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स। कि अगर हमें यहाँ से कोई भी हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन्ड होते हैं तो उनकी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। उनकी कंप्लीट केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फील्ड है, राइट? अब यहाँ पर आपको दो एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनको हमने नाम दिया हाइड्रोकार्बन्स का। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, जैसे CH4। कॉमनली इसका नाम है नेचुरल गैस, जिसको मीथेन गैस भी कहा जाता है। इस गैस को हम अब एज अ फ्यूल डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। दिस इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अनदर कंपाउंड वी कैन सी दैट C2H5OH. This is also another organic compound which is composed of carbon and hydrogen. So it means कि जितने भी कंपाउंड्स हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बने हैं, उनकी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। या इनसे ऑब्टेन्ड होने वाले और दूसरे कंपाउंड्स, जिनको हम डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, उनकी स्टडी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या कार्बन मोनोऑक्साइड जिसके अंदर के कार्बन मौजूद है, तो क्या हाइड्रोजन साइनाइड जिसके अंदर हाइड्रोजन भी मौजूद है और कार्बन भी मौजूद है और हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन को ये फॉलो करता है, तो क्या हम इनकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कहते? नो, इनकी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कहलाती। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि क्यों नहीं कहलाती? इसके अंदर हाइड्रोजन भी मौजूद है, कार्बन भी मौजूद है, या कहीं कहीं पर सिर्फ कार्बन मौजूद है।
जो कि बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन का, तो व्हाई दे आर नॉट इंक्लूड इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो द आंसर इज़ देयर ओरिजिन। यहाँ पर हमने स्टडी किया था एक ख़ास पॉइंट कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओरिजिन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिन कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है उनका ओरिजिन लिविंग है। तो इन एलिमेंट्स, इन कंपाउंड्स या इन सब्सटेंसेस का ओरिजिन लिविंग नहीं है, बल्कि क्या है, इनका ओरिजिन है नॉन लिविंग। सो दैट्स वाई they are not studied in the field of organic chemistry। तो क्या इनकी फील्ड अलग है? येस ऑफ कोर्स, इनकी फील्ड डिफरेंट है। इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं बल्कि इनको हम स्टडी करते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो फील्ड है उसमें हम उन तमाम एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं जिनका ताल्लुक़ लिविंग से हो या नॉन लिविंग से हो। सो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स अस विद द स्टडी ऑफ द कंप्लीट एलिमेंट्स। ओके, so you can see that the inorganic chemistry is the branch of chemistry that deals with the chemistry of elements। अब यहाँ पर word element आ गया तो element का मतलब क्या है कि any of the element which are naturally existing। So these all elements and their compounds are studied in the field of inorganic chemistry। And when we talk about the compounds, so compounds only from where means the source of inorganic compounds must be non-living। For example, mineral, rocks, so they are the inorganic sources। Okay, so all those compounds which are studied in the field of inorganic chemistry, so these are actually the inorganic compounds, right? So the next one is we have analytical chemistry, which deals with the study of different methods and techniques just to find out the kind, quality and quantity of different components of the given substance। Components means you can see that like if I have an element sodium, I have another element chlorine, so when they combine together, so how they combine together to form the NaCl molecule or compound? This is composed of sodium and chlorine। So what are the elements involved in making the compound and in which ratio, or what is the quantity or the quality of the compound? So these all things are studied in the field of chemistry which is called analytical chemistry, because analytical chemistry is the chemistry of methodology of different compounds। It is give us the knowledge, it gives us the knowledge about the methods or techniques which are involved in making the different substances। Now come towards the next class, or you can say that the next branch of chemistry, which is the biochemistry। Biochemistry is actually the word bio means life। So life give us the meaning like plant and animal। तो इट मीन्स कि इस ब्रांच के अंदर हम जिन एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे या जिन कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे, डेफिनेटली दे आर कमिंग फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। सो यहाँ पर हम केमिस्ट्री ऑफ प्लांट एंड केमिस्ट्री ऑफ एनिमल्स की स्टडी करते हैं। दैट्स वाई दिस ब्रांच इज कॉल्ड एज अ बायोकेमिस्ट्री। सो क्या है बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट्स? बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कंपाउंड्स of living organism that are plants and animals and their metabolism in the living body। so different words students आप देख रहे हो, ऊपर आपने देखा कि एक वर्ड आया हाइड्रोकार्बन, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ पर वर्ड आया मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? वर्ड मेटाबॉलिज्म ये वो केमिकल रिएक्शन है जो कि किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर प्रोसीड होता है, और इसके दो फेजेस होते हैं। एक फेज कहलाता है एनाबॉलिज्म और दूसरा फेज कहलाता है कैटाबॉलिज्म, राइट? तो ये दो फेजेस हमारी बॉडी के अंदर मीन्स लिविंग बॉडी के अंदर ऑल द टाइम प्रोसीड होते हैं। एनाबॉलिज्म में होता है किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन का अमल, लाइक कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है बॉडी के अंदर और एनर्जी दे रही है, वो प्रोसेस कहलाता है एनाबॉलिज्म। बनने के बाद जब वो यूटिलाइज़ हो रही होती है बॉडी के अंदर और एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होती है, तो डेफिनेटली ऐसे ही तो नहीं प्रोड्यूस कर देगी जब तक कि ब्रेक डाउन नहीं होगी। तो ब्रेकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स और द टिश्यूज़ और सेल विच इज़ गिविंग अस और रिलीजिंग द एनर्जी, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एनाबॉलिज्म। ओके, सो एनाबॉलिज्म क्या चीज़ है? एनाबॉलिज्म इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप। ठीक है, ब्रेक डाउन हो रहा होता है इसके अंदर
किसी भी कंपाउंड का, किसी भी टिश्यू का, किसी भी सेल का, किसी भी कंपाउंड का जो ब्रेकडाउन का प्रोसेस है वो कहलाता है कैटाबॉलिज्म। ये दोनों फेजेस एट द सेम टाइम परफॉर्म हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, सो कलेक्टिवली द होल प्रोसेस कॉल्ड एज द मेटाबॉलिज्म। और चूँकि ये प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंसर्न है, सो दीज प्रोसेसेस आर मेनली स्टडीड इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री विच इज़ कॉल्ड एज द बायोकेमिस्ट्री। सो द नेक्स्ट वन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है स्टूडेंट्स आपको कि ये हमें किसी भी किस्म के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। हमें किस तरीके से कोई भी कॉमन पेज नंबर 6 सी द डेफिनेशन कि दिस इज़ द ब्रांच गिविंग अस द इंफॉर्मेशन ऑफ द केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द केमिकल इंडस्ट्रीज़, यानी केमिकल इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व होने वाले वो केमिकल प्रोसेस जिससे किसी भी किस्म का सिंथेटिक प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे ग्लास, सीमेंट, पेपर, सोडा ऐश और मैनी मोर सब्सटेंसेस लाइक फर्टिलाइज़र, मेडिसिन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम किसी भी केमिकल इंडस्ट्री से हम ऑब्टेन करते हैं, तो ये ऐसे ही इतने ईजीली नहीं प्रोड्यूस हो जाता। इनके लिए बाकायदा एक नॉलेज, एक स्टडी, एक इन्फॉर्मेशन ली जाती है जिसके बाद ये पॉसिबल होता है कि हम अपनी लाइफ को ईजी करने वाले प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकें। सो दिस ब्रांच which deals with the study of the manufacturing processes of different products which are implemented in our daily life. So this branch is called as the industrial chemistry. Right. So the next one is we have the nuclear chemistry, actually which deals about the study of the complete information of या complete study of the nuclei of an atom, यानी किसी भी किस्म की चेंजेस जो कि किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर अकर हो रही है, उस होने वाली चेंजेस की स्टडी न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है, जिसको हम एक्चुअली किसी दूसरे नाम के साथ भी स्टडी कर सकते हैं, जिसे हम क्वांटम केमिस्ट्री भी कहते हैं। सो क्वांटम केमिस्ट्री भी न्यूक्लियस से रिलीज़ होने वाली जो रेडिएशन होती है, उस रेडिएशन की स्टडी जो अगर किसी ब्लैक बॉडी के साथ अगर वो उस पर स्ट्राइक कर जाए और वहाँ से मतलब बाउंस बैक हो जाए, उसे क्रॉस ना कर सके, तो यहाँ से हम कंप्लीट न्यूक्लियस के अंदर होने वाली या उससे एमिट होने वाली रेडिएशन को स्टडी करते हैं कि वो कितने पार्टिकल्स से मिलकर कंपोज हुई है, किस तरह से वो रेडिएट होती है और किस किस्म की चेंजेस कॉज करती है। तो एक कंप्लीट स्टडी हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री या क्वांटम केमिस्ट्री के नाम से हम इसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हमें किस किस्म की इन्फॉर्मेशन दे रही है स्टूडेंट्स? यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली ये हमें एक ऐसी स्टडी दे रही है, एक ऐसी स्टडी है ये जो कि किसी भी किस्म के केमिकल मटेरियल का उसके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करती है। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ केमिकल मटीरियल्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ किसी एक ही ओरिजिन की तरफ, किसी एक ही होराइजन की तरफ हम जाएं और हम उनके हवाले से बात करें कि जी ये जो है इसी चीज़ पर इफ़ेक्ट देख रहे हैं। यानी एनवायरमेंटल चेंजेस जब होती हैं तो उसका इफ़ेक्ट डेफिनेटली किसी न किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर लाजमी होता है। तो वो क्या हो रहा है, उसके हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट डाल रहा है, उसकी पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो ये तमाम चीज़ें जब हम इसको स्टडी करते हैं, सो दिस स्टडी इज़ कॉल्ड एज अ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री विच इज़ स्टडीड बाय अनदर नेम विच इज़ कॉल्ड एज अ ग्रीन केमिस्ट्री. So when you see that what is a green chemistry, so green chemistry is actually the environmental chemistry which is giving us the complete information about the environment and the occurring changes in the environment which is mostly called as a pollution. Okay, what kind of the pollutions are causing in the environment and what are the effects of the pollution on the health. So these all things are studied in environmental chemistry, right? So you can see that come towards the next which is a polymeric chemistry. The word poly means large, giant या huge, or you can say a poly means many more than two. It means कि polymer एक ऐसा substance है जो दो या दो से ज़्यादा molecules को bind करके या join करके form हुआ है। polymer के बनने का प्रोसेस कहलाता है पॉलीमराइजेशन. सो यू कैन सी दैट द वर्ड पॉलीमराइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर. Polymer is the large molecule which is formed by the combination of many monomers, right? So the study of these polymer
or the process of polymerization is called as the polymeric chemistry. Right? Meric means formation, poly means many more. So एक बहुत बड़े मॉलिक्यूल के बनने का अमल जब स्टडी किया जाता है तो उसके लिए एक ब्रांच हमारे पास जो इम्प्लीमेंट होती है वो है पॉलीमरिक केमिस्ट्री, जिसके रिज़ल्ट के तौर पर बहुत से सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी बुक में देख सकते हो कि यहाँ पर जो है हमारे पास मैनी मोर, यू कैन सी दैट आई शो यू दैट ऑन बुक, यू कैन सी synthetic fiber. So synthetic fiber is one of the polymer. Next paper, and except paper we have plastic. Okay, so plastic is the polymer, synthetic fiber is the polymer, and paper also the polymer. So these are the main examples of the polymer and how they are formed by the process of obviously the polymerization, and the study of the process of polymerization is called as the polymeric chemistry. Okay students, the next topic is scientific method. ये साइंटिफिक मेथड या इससे रिलेटेड जितने भी स्टेप्स हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप वीडियो को पॉज करके बार बार सुनिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि किसी भी किस्म के क्वेश्चन का आंसर आपको सिर्फ वीडियो में ही मिलेगा। तो आपने वीडियो को बहुत गौर से सुनना है, समझना है और आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द साइंटिफिक अप्रोच। ओके, यू कैन सी इजीली दैट व्हाट इज the scientific method or how we can define it. So you can see that a series of discoveries which started off as observed natural phenomena that had to be explained in systematic manner. The definition is fully seen in the video, so you can take out the screenshot and note it in your copies, right? तो क्या होता है साइंटिफिक मेथड? ये एक डिस्कवरीज के हवाले से एक ऐसी सीरीज़ है कि जब हम इसको सिस्टमेटिक मैनर में डिस्क्राइब करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं तो पूरा मेथड क्लियरली एक्सप्लेन हो जाता है। इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट थिंग इज़ ऑब्जर्वेशन, द सेकंड वन इज़ हाइपोथेसिस, थर्ड वन इज़ थ्योरी, and the fourth and the last step is scientific law. तो साइंटिफिक मेथड स्टार्ट्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड्स अप साइंटिफिक लॉ, यानी किसी भी डिस्कवरी में जब हम किसी लॉ को इस्टेब्लिश करने जाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें फिनोमिना को ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्वेशन के बाद हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उस स्टेटमेंट को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस के बाद एक और हमारे पास एक प्रूवन आइडिया होता है जो कि फुली प्रूव्ड होता है और कंफर्म्ड हो जाता है, तो उसे हम थ्योरी का नाम दे देते हैं। थ्योरी जब कंफर्म हो जाती है तो उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है। टेस्ट होने के बाद जब वो वैलिड प्रेडिक्शन देने के काबिल हो जाती है तो उसे हम लॉ का नाम दे देते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम वन बाय वन देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, थ्योरी क्या है एंड साइंटिफिक लॉ क्या है और कैसे ये बनते हैं। राइट, अब आपने एक एक स्टेप को स्क्रीनशॉट लेकर या आपने इसको पॉज करके इसको बार बार देखना है, अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि आपने खुद आंसर्स लिखने हैं अपने तौर पर। तो देखते हैं हम ऑब्जर्वेशन क्या है। फर्स्ट सी दैट ऑब्जर्वेशन इज़ एक्चुअली अ बेसिक स्किल। क्या होती है ये हमारी बिल्कुल बेसिक स्किल है, या आप इसको बेसिक टूल भी कह सकते हो, कि जिसे हम अपने सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। तो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ observation is the basic skill, or you can say the basic tool that is used by our 5 senses। ठीक है, तो हम अपने सेंसेस को यूज़ करते हुए जब किसी भी फिनोमिना को नोटिस करते हैं तो ये नोटिफिकेशन हमारी कहलाती है ऑब्जर्वेशन। अब चूँकि हर एक पर्सन की ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होती है, हर एक का पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होता है, तो इसी वजह से ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, यानी हर एक का ऑब्जर्वेशन स्किल, हर एक का ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू सेम नहीं होता, ये वेरी करता है। जैसे फिनोमिना को मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ और उसी फिनोमिना को आप भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपका
ऑब्जर्वेशन पॉइंट कुछ और है, मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट कुछ और है, तो हम दोनों के पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्लैशेस आएंगे, दोनों वेरी करेगा, जिसकी वजह से डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट होती हैं एट द सेम टाइम। अब ये ऑब्जर्वेशंस जो है उस पर भी फर्दर प्रोसीड होती है वो, और फर्दर प्रोसीजर के बाद हमारे पास जो हम ऑब्जर्वेशन के बाद जो भी स्टेटमेंट हम डिलीवर करते हैं रिगार्डिंग द ऑब्जर्वेशन, दैट इज़ कॉल्ड एज द हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या है कि चूँकि अभी हमने आपको बताया कि ऑब्जर्वेशन वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, तो हाइपोथेसिस डायरेक्टली प्रूव नहीं हो जाती। हमारा ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, एक्सप्लेन की नीड भी हो सकती है और एक्सेप्ट भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वेशन कितनी ट्रू है और उसके बाद हमारे पास क्या स्टेटमेंट आ रहा है। तो हमने इसको डिफाइन किया कि इट इज़ एक्चुअली अ ट्रायल आइडिया। उसके बाद मैं इसको कह रही हूँ कि एक लॉजिकल आइडिया भी है। तो हम हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करते वक्त हम बहुत आराम से हम ये बात कहते हैं कि इट इज़ अंडर प्रोसेस, क्योंकि अभी हम इसको प्रोसेस में रखा हुआ है, ये कम्प्लीटली या फुली प्रूफ नहीं है, इस पर वर्किंग हो रही है। तो ये एक लॉजिकल आइडिया है, लॉजिक दे तो रहा है बट ये फुली प्रूफ नहीं है। तो हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस में और मे नॉट बी एक्सेप्टेड। और हम इसको डिफाइन करने के लिए एक और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं कि हाइपोथेसिस इज एक्चुअली ओनली एन इंटेलिजेंट गैस एंड दैट्स इट। ओके, उसके बाद जब हाइपोथेसिस एक्सप्लेन होने के बाद एक्सेप्ट हो जाती है तो वो थ्योरी में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर वो एक्सेप्ट ना हो तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हमने क्या कहा था कि इट इज़ ओनली अ गैस, इट इज़ नॉट द प्रूफ्ड आइडिया। ये प्रूफ्ड आइडिया नहीं है, इसको हम डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, और अगर ये प्रूव हो जाए तो हम इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, बट ये एक्सेप्टेबल आइडिया नहीं है। लेकिन अगर हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए तो ये कन्वर्ट हो जाती है थ्योरी में। तो थ्योरी को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि एन एक्सेप्टेबल आइडिया और वी कैन से अ फुली प्रूवन आइडिया इज कॉल्ड एज द थ्योरी। ओके, सो हाइपोथेसिस जब एक्सेप्ट हो जाए सो इट विल बिकम अ थ्योरी। ओके स्टूडेंट्स, सो थ्योरी कैन बी डिफाइंड एज एन एक्सेप्टेबल आइडिया और यू कैन से अ फुली प्रूवन आइडिया इज कॉल्ड एज द theory. Okay, so you must record this by pausing the video. Theory will convert into the scientific law. What is scientific law? जब theory completely accept हो जाती है तो उसको टेस्ट किया जाता है with the help of some experiments. टेस्ट होने के बाद जब वो वैलिड प्रेडिक्शंस देने लगे सो दैट इज कॉल्ड एज द साइंटिफिक लॉ। तो साइंटिफिक लॉ को आप कैसे डिफाइन करोगे? आर टेस्टेड थ्योरी that fits according to the fact. You can see that easily. Use for valid prediction is called as the scientific law. तो इस तरह से हमारे पास ये 4 बेसिक स्टेप्स आ जाते हैं जो कि कंबाइन होकर एक सिस्टम बनाते हैं। उस सिस्टमेटिक मैनर में जब हम इन स्टेप्स को स्टडी करते हैं सो दिस इज कॉल्ड एज द साइंटिफिक मेथड। Okay students, let's see the next topic, which is a contribution of chemist. This question is given in the assignment. So first of all, your task is to take out the screenshot quickly. Then I explain. Okay. वीडियो पॉज करके आपने बार बार सुनना है, बार बार इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ एंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी क्लियर स्क्रीन इज हेयर। यहाँ पर हमारे पास बहुत से साइंटिस्ट हैं जिसमें फ्यू साइंटिस्ट का मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ रिगार्डिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ केमिस्ट। सबसे पहले इस फील्ड में आते हैं हमारे पास जिनको टाइटल दिया गया था फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री का, वो है रॉबर्ट बॉयल। टॉप ऑफ द लिस्ट आप देख रहे हो। इनका जो सबसे ग्रेट वर्क था इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री वो थे गैसेस लॉज। इन्होंने गैसेस के बिहेवियर को स्टडी किया और उनसे रिलेटेड लॉज को स्टैब्लिश किया। ग्रेट कंट्रीब्यूशन थी जिसकी वजह से इनको फादर का टाइटल दिया गया, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इनके बाद नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन आपको नज़र आ रही है स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड, जे ब्लैक। कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने स्टडी की थी। जे प्रिस्ले ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। स्पेलिंग समझ नहीं आ रही है अगर तो मैं फिर रीड कर रही हूँ, आप लोगों ने गौर से सुनना है। जे प्रिस्ले
is the name of scientist. He introduced oxygen, sulfur dioxide and hydrogen chloride. इनके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास जो आपको नज़र आ रहे हैं बोर्ड पर, शीले, इसको सही प्रोनाउंस करने के लिए इसको स्केल्स भी बोला जाता है, स्केल्स. ही डिस्कवर्ड क्लोरीन. कैवेंडिश डिस्कवर्ड हाइड्रोजन. लेवाइजर डिस्कवर्ड द कंपोजिशन ऑफ एयर. According to him, air is composed of oxygen 1/5 पार्ट. यानी इनके अकॉर्डिंगली अगर हम एयर में ऑक्सीजन का रेशो देखते हैं तो ये बताते हैं कि ऑक्सीजन एयर में 1/5 पार्ट मौजूद होती है. जॉन डाल्टन ने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का आइडिया दिया था. इसके अलावा साथ साथ उन्होंने एटॉमिक वेट्स भी फाइंड आउट किए थे, यानी कैलकुलेट किए थे. तो जॉन डाल्टन के नाम के सामने आपने लिखना है, ही प्रपोज द आइडिया ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड ही डिटरमाइन द एटॉमिक वेट्स. बाद में आपके सामने कुछ साइंटिस्ट के मिले जुले नेम्स आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं. दिस इज द टीम वर्क. इस टीम के अंदर जो मेंबर्स मौजूद थे केमिस्ट, उनके नेम्स हैं गेल ल्यूसिक, एवोगाड्रो, ड्यूलम एंड पेटिट. इन्होंने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस डिटरमाइन किए थे. जी स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट सीरीज़ है साइंटिस्ट की जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको बोर्ड पे नज़र आ रही है. तो मैं फिर यही कहूँगी कि सबसे पहले आपने क्विकली एक स्क्रीनशॉट लेना है. मैं बुक में भी शो कर दूंगी आपको, लेकिन लिखने का तरीक़ा कॉपीज़ के अंदर यही होगा जो मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ. हमारे पास अदर साइंटिस्ट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. जे बर्ज़ेलियस, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था एलिमेंट्स के सिंबल्स को, उन मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स के फार्मूला सेट किए थे इन्होंने, और इसके साथ ही केमिकल इक्वेशंस बनाने का जो सबसे पहला मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था वो जे बर्ज़ेलियस. इतना सब कुछ नहीं लिखिएगा, जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है सिर्फ इतना लिखिएगा कि जे बर्ज़ेलियस इंट्रोड्यूस्ड सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, formula of compounds or molecules and chemical equations of the chemical reactions. फिर हमारे पास एक और साइंटिस्ट आपको बोर्ड पे क्लियरली नज़र आ रहे हैं. दैट्स नेम इज़ मेंडलीफ. बहुत ही ग्रेट इनका टास्क था, ग्रेट अचीवमेंट थी इन द फील्ड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर में, एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करने का जो सबसे बड़ा कारनामा अंजाम दिया था. सो दैट वाज मेंडलीफ. उनके सामने लिख दीजिएगा, ही अरेंज डिफरेंट एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल. फिर आर्हीनियस एक और साइंटिस्ट आपके सामने आए. उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी आयनिक थ्योरीज. इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी कि कुछ कंपाउंड्स जो अपने आइंस में डिसोसिएट हो जाते हैं और आइंस फॉर्म करते हैं, तो उन थ्योरीज़ को आयनिक थ्योरीज़ कहा जाता है, और वो इंट्रोड्यूस करवाई थी सबसे पहले आर्हीनियस साइंटिस्ट ने. फिर हमारे पास एक फिनोमिना है इलेक्ट्रोलाइसिस का. उस फिनोमिना से रिलेटेड जो लॉज इस्टेब्लिश किए थे वो किए थे माइकल फैराडे ने. तो एम फैराडे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आप देखिएगा इनके सामने इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है कि ही इस्टेब्लिश लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. फिर एक टीम वर्क नज़र आ रहा है हमें. टीम वर्क में डिफरेंट साइंटिस्ट आपको नेम्स एक साथ नज़र आ रहे हैं. सो दे वर्क टुगेदर एज अ टीम. नेम्ड जे थॉम्सन, हेनरी बैकरल, मैम क्यूरी, शी वाज अ लेडी, नील बोहर एंड अर्नेस्ट रदरफोर्ड. इन्होंने मिलकर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर वर्कआउट किया था, और साथ ही एटम के अंदर मौजूद न्यूक्लियस से एमिट होने वाली रेडिएशन को भी ऑब्जर्व किया था, जिस फिनोमेना को रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया गया. तो दे वर्कड on structure of atom as well as the radioactivity. So they were the contributions of different chemists and the scientists, but they were not the Muslims. They were the British, German, English scientists. So I only explained about the contributions of the English scientists. So you have to write down only these contributions. Okay students, now let's move towards your assignment, that how you will complete your assignments that is provided by your school. See that
The whole instruction is mentioned over here, that how you will make the title page. First of all, all of you know that first of all in the copies you will have to make the title page of chapter number 1, Introduction to Chemistry. Then in front of the title page you will have to make another title page for the short answer questions. Then after that, in the given below, you will have to start writing the answers of the given question in assignment sheet, because this assignment is totally dependent of the video. So you will have to watch the video for taking the answers of the given questions. So this assignment is based upon the videos which are provided to you. So first questions you can see that what is science. In video I explain in detail कि साइंस क्या होती है. देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि साइंस की कितनी ब्रांचेस हैं, उन तमाम के बारे में आपको डिटेल में नहीं बताना. जस्ट यू विल हैव टू राइट डाउन द नेम्स ऑफ द ब्रांचेस. ओके, देन सी दैट क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन केमिस्ट्री एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. सो सिमिलरली केमिस्ट्री क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर दी गई है. ब्रांचेस के नाम आपको मेंशन कर दिए गए हैं और आपको उसके बाद एक एक ब्रांच की बहुत डिटेल आपको एक्सप्लेन की गई है. ठीक है, ओके. तो डिटेल के लिए या तो वीडियो को पॉज कर करके भी आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं, या आप लोगों ने अपनी बुक खोलकर पेज नंबर 5 आप देखिए. यहाँ पर तमाम ब्रांचेस की डिटेल आपको नज़र आएगी. ईच ब्रांचेस इज डिस्क्राइब्ड ओवर हियर, सो यू कैन टेक आउट द आंसर फ्रॉम पेज नंबर 5 and 6. नाउ कम टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ रिलेटेड टू द डेफिनेशन. सो यहाँ पर आपको डिफाइन करना है. कुछ शॉर्ट डेफिनेशंस निकाली गई हैं इस चैप्टर में से. हर ब्रांच में से कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ टेक आउट की गई हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती हैं. तो इन टर्मिनोलॉजीज़ को भी आपने डिफ़ाइन करना है बहुत ईजी वर्डिंग के साथ. जैसे नंबर 1 हाइड्रोकार्बन आपको नज़र आ रहा है, तो ये हाइड्रोकार्बन आपको मैंने लेक्चर में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है. आप वहाँ से इसकी डेफिनेशन ले सकते हो. वेरी शॉर्ट, इसकी डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हो कि हाइड्रोकार्बन्स आर ओनली द कंपाउंड्स विच आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन. ठीक है, अब आप मेरी वर्डिंग को वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, बार बार आप सुन के लिख सकते हो कि मैंने हाइड्रोकार्बन की क्या डेफिनेशन बताई है. कि हाइड्रोकार्बन आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन. दैट्स इनफ. नंबर 2, मेटाबॉलिज्म भी आपने देखा, मैंने बोर्ड पर बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया है मेटाबॉलिज्म के हवाले से. तो आप मेटाबॉलिज्म को भी डिफाइन कर सकते हो इन योर ओन वर्डिंग. लाइक मैं दोबारा बता देती कि मेटाबॉलिज्म इज़ द केमिकल प्रोसेस विच इज़ अकरिंग इन द लिविंग बॉडी और लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग 2 steps और 2 phases लाइक कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो बहुत आसान वर्डिंग के साथ. फिर तीसरी मैंने टर्मिनोलॉजी निकाली है फर्टिलाइज़र. फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल्स which are used to enhance the production of crops. ठीक है, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं बहुत आसान वर्डिंग के साथ कि फर्टिलाइज़र्स वो केमिकल्स हैं जो किसी भी क्रॉप की प्रोडक्शन को इन्हेंस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. नंबर 4, फिर आपके पास है सिंथेटिक प्रोडक्ट. सिंथेटिक प्रोडक्ट की भी बहुत ईजी डेफिनेशन है कि दे आर द प्रोडक्ट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मैन इन द इंडस्ट्रीज़. राइट, तो बहुत ही आसान. सच एज आप इससे एग्जांपल देना चाहो तो दे सकते हो, सच एज प्लास्टिक, इंक और any product like cement, any product you can give the example of the synthetic product which are manufacturing in the chemical industries. राइट. नंबर 5, आपके पास एक और टर्मिनोलॉजी है, दैट इज़ पॉल्यूशन. पॉल्यूशन को आप डिफाइन करने के लिए बहुत ही इजी वर्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं कि पॉल्यूशन इज़ एक्चुअली द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पॉल्यूटेंट्स इनटू द एनवायरनमेंट. अब एनवायरनमेंट कुछ भी हो सकता है, लाइक एयर एनवायरनमेंट भी हो सकता है, तो एयर पॉल्यूशन कहलाएगी. अगर सॉइल के अंदर कोई पॉल्यूटेंट मिक्स हो गया है, उसकी मिक्सिंग सॉइल पोल्यूशन कहलाएगी. वाटर के अंदर अगर कोई ऐसा पॉल्यूटेंट यानी हार्मफुल सब्सटेंस अगर मिक्स हो गए तो वो वाटर पोल्यूशन कहलाएगी. इसी तरीके से डिफरेंट पॉल्यूशंस जिस एनवायरनमेंट के अंदर भी पॉल्यूटेंट्स मिक्स हो जाते हैं वो पॉल्यूशन कॉज करते हैं. तो पॉल्यूशन इज़ एक्चुअली द इंटरमिक्सिंग ऑफ पॉल्यूटेंट्स इनटू द एनवायरनमेंट, राइट, विच कॉज द पॉल्यूशन. अब पॉल्यूटेंट्स का वर्ड मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ, यू मे कन्फ्यूज डेफिनेटली. तो पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? पॉल्यूटेंट्स हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कहीं पर भी किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं.
राइट। तो डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्टिव मटेरियल जो होते हैं वो पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस जो कि पॉइजनस भी होते हैं, तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। नंबर 6 पॉलीमर। पॉलीमर भी मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि अ लार्ज और ह्यूज मॉलिक्यूल और द जाइंट मॉलिक्यूल विच इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल यूनिट्स, सो दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमर। जैसे पॉलीमर की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, फाइबर, सिंथेटिक फाइबर इज कॉल्ड द पॉलीमर, लाइक प्लास्टिक, राइट। तो पीवीसी प्लास्टिक इज़ द पॉलीमर। नेक्स्ट एक और आपके पास टर्मिनोलॉजी मैंने दी है पीवीसी, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड इज़ द प्लास्टिक, ओके। तो यहाँ पर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लास्टिक मानी जाती है जो कि पाइप्स वगैरह को बनाने में यूज़ की जाती है। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि पीवीसी स्टैंड्स फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड विच इज़ यूज्ड एज अ प्लास्टिक, राइट, या विच इज़ अ प्लास्टिक यूज्ड इन मेकिंग पाइप्स, आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो। तो ये 7 डेफिनेशन से मैंने आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दी। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपीज़ के अंदर हेडिंग के साथ, प्रॉपर हेडिंग के साथ आप इसे लिखिएगा। कम टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री। यहाँ पर आपको साइंटिफिक अप्रोच मैंने बोर्ड पर बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है। आपने वीडियो को देखना है और वीडियो देखने के बाद आप हर चीज़ की डेफिनेशन इस क्वेश्चन में, लाइक मैंने आपसे पूछा व्हाट डू यू मीन साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक अप्रोच, इसकी डेफिनेशन आप वीडियो से लीजिएगा। फिर जितने भी स्टेप्स हैं साइंटिफिक अप्रोच या साइंटिफिक मेथड के, लाइक ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी, साइंटिफिक लॉ, इन तमाम की डेफिनेशन आपको वीडियो से मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी है आपको कि सी वीडियो फॉर द आंसर्स, सो यू मस्ट वॉच द वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल, वरना फिर आप आंसर्स नहीं लिख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ अबाउट राइटिंग डाउन द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ केमिस्ट। इसका भी मैंने बोर्ड पर पूरा कंप्लीट टेबुलेशन फॉर्म में कॉन्ट्रीब्यूशंस मेंशन की हैं कि केमिस्ट, मतलब मैंने आपकी जो बुक में कुछ डिफरेंट 3 फेजेस के अंदर डिवाइड किया है। मैंने उन तीनों फेजेस को नहीं लिया क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मॉडर्न पीरियड की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वही ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो मैंने बोर्ड पर वही चार्ट मेंशन किया है, आपने वहीं से वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आपसे एक बात पूछी है कि राइट डाउन द 3 सिग्निफिकेंट रीजंस टू स्टडी केमिस्ट्री। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है स्टूडेंट से कि आपने सिर्फ उन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखना है, सिग्निफिकेंट रीजंस को लिखना है जो ज़रूरी होते हैं केमिस्ट्री की स्टडी के लिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि शायद केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट रोल के हवाले से बात हो रही है, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर आपने सिर्फ सिग्निफिकेंट रीजंस बताने हैं कि क्या सिग्निफिकेंट रीजंस है, वो मैं आपको बुक में मेंशन करती हूँ। आपने बुक पेज नंबर 4 पर जाना है और पेज नंबर 4 में एक टॉपिक है केमिस्ट्री एंड सोसाइटी, वहाँ पर ये तीनों सिग्निफिकेंट रीजंस मौजूद हैं जहाँ से आप इसे कॉपी डाउन करोगे। एंड यू कैन सी दैट पॉलीमेरिक केमिस्ट्री is concerned with the branches of chemistry, so don't see that, you will have to see from every branch of chemistry, okay। यहाँ से आपने देखना है कि जितनी भी ब्रांचेस हमने डिस्कस की थी इन द क्लास, तो उन तमाम ब्रांचेस की आपने इंपॉर्टेंस नोटिस की थी कि हर ब्रांच की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है हमारी डेली लाइफ में। अब इस पूरे पैराग्राफ में एवरी ब्रांच से लेकर आप देख रहे हो लास्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड। तो बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड जो है वो लास्ट वर्ड होगा। आपने इसको कम्प्लीटली इस पूरे पैराग्राफ को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ना है और इसमें से कोई भी 3 इम्पॉर्टेंस केमिस्ट्री की आप यहाँ से टेक आउट कर सकते हो। या फिर पेज नंबर 4 पर भी यहाँ पर कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ को कवर किया है कि केमिस्ट्री किस तरह से, केमिस्ट्री के 2 केमिकल्स ही की अगर हम इंपॉर्टेंस देखें तो हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आप इन पैराग्राफ्स को भी आप बहुत अच्छे से रीड आउट कर सकते हो। थॉरली रीड करने के बाद आप पेज नंबर 4 एंड पेज नंबर 5 की बिल्कुल टॉप की जो 3 लाइन्स है, आप यहाँ इन 3 लाइन्स को पढ़ के भी आपने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत आराम से केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस के हवाले से निकाल कर अपनी कॉपीज़ के ऊपर, अगर आप हेडिंग डाल सकते हो तो हेडिंग डालकर, वरना 3 पॉइंट्स सिंपल वे में आप अपनी कॉपीज़ पर लिखिएगा।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा फर्स्ट असाइनमेंट केमिस्ट्री से रिलेटेड। आई होप कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसे कॉपी में राइट डाउन करना है। और अगर कोई चीज़ फिर भी समझ में नहीं आई है तो इंशाल्लाह ताला हमारा स्कूल जैसे ही ओपन होता है, फिज़िकल क्लासेस जैसे ही स्टार्ट होती हैं, मैं इन तमाम चीज़ों को दोबारा से रिव्यू दूँगी। आपको एक रिव्यू क्लास आपकी हम अरेंज करेंगे, उसमें तमाम चीज़ें मैं आपको फिर दोबारा समझा दूँगी। सो डोंट वरी अबाउट दिस असाइनमेंट। जैसे समझ में आता है कोशिश कीजिएगा कि कंप्लीट करें। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इजी वे में इसको अपने कॉपीज़ के अंदर कंप्लीट करने की पूरी एफर्ट कीजिएगा। और इसी वीक में अगर आप स्कूल में आकर टीचर से कांटेक्ट करके समझना चाहते हैं तो भी हम यहाँ पर अवेलेबल हैं, वरना फिर इंशाल्लाह ताला जैसी फिज़िकल क्लासेस आपकी स्टार्ट होती हैं देन आई विल रिवाइज दिस चैप्टर वंस अगेन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।